Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of SYJC Economics Chapter 2, Part 11. Belated wish you all a happy Anant Chaturthi. Dear friends, in our second chapter, we have already started with the concept of importance of law of diminishing marginal utility. What is actually law of DMU? Other things remain constant. When the consumer consumes more and more units of the same commodity in a continuous and quick manner, he gets lesser and lesser utility from it. That is law of diminishing marginal utility. Now, why we need this type of law of DMU in our economic life, in our routine life? So the topic was divided into two categories. Capital A was theoretical importance, in which we have already discussed four different examples. That is consumer's behavior. We always try to get maximum satisfaction, and for that purpose we need law of DMU. Our second point was basis for other economic laws. Law of DMU provides the base for other economic laws like law of demand. In my last lecture only, I have given you an example of higher the price, lower is the demand, and lower the price, higher is the demand. 1.5 लाख रुपए का प्लाज्मा टीवी की कंपनी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम रोज के 10 टीवी यूं बेच देंगे, क्योंकि वो 1.5 लाख रुपए का है, उसका डिमांड कम होता है। डिमांड कम इसलिए होता है क्योंकि पब्लिक के हिसाब से 1.5 लाख रुपया वसूल नहीं होता है। सो नॉर्मल पीपल आर नॉट गेटिंग दैट मच एम्यू बाय स्पेंडिंग 1.5 लाख रुपीज फॉर वन प्लाज्मा टीवी। एग्जैक्टली ऑपोजिट लोटस है 60 रुपया लेडीज सैंडल। लड़कियों के हिसाब से 60 रुपया पूरा वसूल है, इसलिए उनको लेडीज सैंडल सस्ता लगता है और इसलिए दे आर डिमांडिंग मोर ऑफ इट। सो फाइनली लॉ ऑफ डिमांड ओरिजिनली comes out from law of DMU. After that, we have explained the concept of paradox value. That is, water is most important element of our life, but it is freely available in nature, and that is why it has no money value. Exactly opposite. Diamonds are useless in our life, but they are very scarce in market, in nature, and that is why it has greater money value. सो जो चीज़ आसानी से मिल जाती है हम उसकी कदर कभी नहीं करते, और जो चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती हो, भले वो काम की ना हो, तो अपने दिमाग में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एंड आवर फोर्थ पॉइंट वॉज यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट इज वी कैन सेटिस्फाई ओनली अ सिंगल वांट एट अ टाइम। हम एक वक्त में अपनी कोई भी एक ही इच्छा को पूरी कर सकते हैं। सो दैट वॉज आवर कैपिटल ए पार्ट, थियोरिटिकल इम्पोर्टेंस. Dear friends, today we are going to cover the second part, that is capital B, and that is practical importance. In capital B part also we have four different practical examples. In all these four different examples, in the beginning we feel कि ये जो सर बोल रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ये फेंक रहा है सारा, प्रैक्टिकल ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. But after some explanations, even you will realize and you will agree with me कि हाँ यार practically ये होता है. Yes, law of diminishing marginal utility is practically also useful in four different criteria in our routine life. Let's begin with first point, and that is tax policy. Dear friends, law of DMU is helpful to the government of any country to decide tax policy. For example, in India, we have taxation system like a rich person should pay higher amount of tax. I repeat the sentence. A rich person should pay higher amount of tax. जो
जितना ज़्यादा कमाएगा वो उतना ज़्यादा टैक्स पे करेगा ठाकुर। वाई आई एम सेइंग लाइक दिस, अगर आप अपना टैक्स का स्ट्रक्चर देखेंगे कभी, अगर कभी थोड़ा बहुत भी टैक्स समझ में आता हो, इंडिया में टैक्स का जो सिस्टम है, ओके, अप टू 3 लाख रुपीज़ इनकम, अगर आपके पूरे फैमिली की एक साल की कमाई 3 लाख रुपए तक है तो यू हैव टू पे 0 रुपी टैक्स, मतलब कोई टैक्स पे आपको नहीं करना है, कोई टैक्स पे नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, अप टू 5 लैक्स, अप टू 5 लैक्स अगर आप अपने सीए के साथ बैठे और थोड़ा समझे तो भी कोई टैक्स पे आपको नहीं करना है। मतलब आप 5 लाख रुपए तक कमाओ, आपको कोई टैक्स नहीं आता है, और अगर वो आता भी है तो इट इज जस्ट 5%, जस्ट 5%। ओके, अगर आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर निकल जाती है तो यू हैव टू पे 20%, उससे ज़्यादा निकल जाती है 30%। तो ये जो टैक्स का सिस्टम है, इट शोज कि अ रिच पर्सन शुड पे हायर अमाउंट ऑफ टैक्स। अब किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के दिमाग में ये लॉजिक कहाँ से आया कि जो ज़्यादा कमाता है ना उसके पास से टैक्स ज़्यादा वसूल करो? तो इसके पीछे जो ओरिजिन दिमाग है वो लॉ ऑफ डीएमयू है फ्रेंड्स, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू ये बता चुका है कि जो चीज़ आपके पास ज़्यादा अवेलेबल है आपके लिए वो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। तो जो पैसे वाले लोग हैं, जो बहुत कमा रहे हैं, उनको टैक्स पे करने में जान नहीं जलेगी। अगर कोई बंदा सिर्फ साल का 2 लाख कमा रहा है, उसको अगर बोल दिया कि 20,000 रुपये टैक्स पे करो तो उसकी जान चलेगी। पर जो 10 लाख कमा रहा है उसको अगर बोल दिया कि तू 20,000, 30,000 या 50,000 टैक्स पे कर तो उसकी जान नहीं जलेगी। एक छोटा सा लॉजिकल एग्जांपल समझा पाऊंगा तो, अगर आपके घर पे कोई काम वाली बाई, ताई, आजी, मौसी, आप जो भी बोलते हो, अगर कभी मम्मी बीमार हो और मम्मी ने उसको 10 रुपया देकर बोला कि थोड़ा हल्दी धनिया लेकर आ, ओके, अब अगर सपोज हल्दी धनिया जो भी लेने को भेजा था उसका 9 रुपया हुआ है, ठीक है, और वो भैया जी बोल रहे हैं कि 1 रुपया छुट्टा नहीं है ना। उसी अगर आप और मैं होंगे ना तो अपने को 1-2 रुपये से फर्क नहीं पड़ेगा, हम क्या करेंगे, छोड़ यार चल जा खुश हो, ओके। लेकिन वो जो ताई, आजी, मौसी जो भी है उसको 1 रुपये से फर्क पड़ता है, क्योंकि उसका महीने का पगार 800 रुपया, 1000 रुपया है, ओके। तो कुछ भी मच करेगी, 10 मिनट बिगाड़ेगी, 15 लोगों को जमा करेगी, 20 गालियाँ देगी और उस भैया जी से कुछ भी करके 1 रुपया वसूल करेगी। घर पे आके 1 रुपया मम्मी को नहीं देगी कि 9 रुपये का आया है, घर पे आके क्या बोलेगी, 10 रुपये का आया, ओके। वो 1 रुपया उसके खुद के वॉलेट में गया। अब इसके पीछे की सोच क्या है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर ऐसा सपोज महीने में 10 दिन ऐसा 1-1 रुपया मिल जाए तो एटलीस्ट एक बार का स्टेशन से लेकर घर पे आने का जो शेयर रिक्शा का खर्चा है वो तो फोकट में निकल जाए। तो उसके लिए ये 1 रुपया बहुत बड़ा मैटर करता है। आपके और मेरे लिए 2 रुपया भी शायद मैटर ना करता हो। अगर आप अपने घर से सपोज कोई एक जगह पे रिक्शा में गए हो और 18 रुपया मीटर आया है, आपने 20 का नोट दिया, ओके, और ड्राइवर रिक्शा वाले ने बोल दिया कि 2 रुपया छुट्टा नहीं है, क्या करेंगे आप, कॉलर से खींच के धापट धोपट। अगर सामने से कोई अच्छी लड़की आती होगी ना तो और भी शाइनिंग, क्या वो बॉस छुट्टा नहीं है, अरे रख यार, तू भी क्या याद कर, ऐश कर जा, अरे बात तो ऐसे कर रहा है जैसे 2 रुपये में उसका बंगला बनने वाला है, ओके। आपको 2 रुपये से फर्क नहीं पड़ेगा, 2 रुपये बिंदास छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो काम वाली बाई, ताई, आजी, मौसी थी, वो 1 रुपया झगड़ा करके भी वसूल करेगी। तो जो जितना ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा टैक्स पे कर पाएगा, क्योंकि उनको पैसों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसकी कमाई कम है उसके लिए 1000 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो टैक्स पे करते वक्त उसकी जान जलेगी। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड दिस टाइप ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर इन आवर कंट्री, कि जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा। तो अ रिच पर्सन शुड पे हायर अमाउंट ऑफ टैक्स। सो दिस टाइप ऑफ टैक्स पॉलिसी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ law of DMU. So that was our first point, tax policy. Friends,
Our second point is redistributive policy and social justice. I repeat the heading, redistributive policy एंड सोशल जस्टिस। देखिए, अगर हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो बहुत हेवी वर्डिंग्स हो जाते हैं। सोशल जस्टिस का मतलब निकलता है सामाजिक न्याय, सबको न्याय मिलना चाहिए। एंड व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी? रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी का मतलब निकलता है कि अगर ऊपर वाले की देन है और आपको कोई चीज़ फ्रीली ज़्यादा अवेलेबल है तो आपको वो चीज़ बांटना है उन लोगों के बीच में जिनके पास वो नहीं अवेलेबल है। शेयरिंग इज केयरिंग, ये अपने को बचपन से अपने घर के संस्कार में सिखाया जाता है। अपने को बचपन से ये समझाया जाता है कि आधे में से भी आधा बांटो। ये बात अलग है कि ऐसी सब चीज़ें मुझे तो कभी समझ में नहीं आती है। मम्मी काफ़ी बार समझाती है कि अगर आप खाना खाने बैठे हो, एक चपाती लेके बैठे हो, अगर कोई भूखा भिखारी आया हो तो वो एक में से आधा उसको बांटो। मुझे कभी समझ में नहीं आता है कि अगर एक ही चपाती है उसमें से आधा उसको दिया, ना उसका पेट भरेगा ना मेरा पेट भरेगा, फ़ायदा क्या? या तो मैं उसको बोल दूँ कि भाई तू आगे जाके किसी और से ले ले, मेरे कोई चपाती खाने दे, मेरा तो पेट भरे। या फिर एक काम करिए, चपाती तू ले जा, मैं पाव भाजा मंगा के खा लूँ, और क्या। तो कहीं ना कहीं एक लॉजिकल बात समझाई जाती है बचपन से हमें। इट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। आप बोलेंगे सर इसमें लॉ ऑफ डीएमयू कहाँ पे कनेक्ट हुआ? तो लेट मी क्लैरिफाई। लॉ ऑफ डीएमयू प्रोवाइड्स सोशल जस्टिस in the society with the help of redistributive policy among the people. Example, the excess wealth should be transferred from rich to the poor. I repeat the example, the excess wealth should be transferred from rich to the poor. Excess मतलब एक्स्ट्रा, ज़्यादा। वेल्थ मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी। अगर किसी पैसे वाले के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी हो खुद के नाम पे तो गरीब लोगों को वो प्रॉपर्टी उसको बांट देना चाहिए ताकि जिनके पास ज़मीन नहीं है, रहने का घर नहीं है, उनको वो मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, सुनने को ये अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि अगर किसी के पास बहुत सारी ज़मीन पड़ी हो तो वो सबको बांटते फिरेगा? प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचो, क्या ये पॉसिबल है? अगर सपोज मेरे पास अंधेरी में 7 फ्लैट हो मेरे खुद के नाम पे, तो वो 7 फ्लैट में से एक फ्लैट में मैं रहता हूँ, तो क्या बाकी के 6 फ्लैट मैं सबको बांटते फिरूंगा? कोई एक फ्लैट का चाबी एक प्रोफेसर को दे दिया, किसी एक और फ्लैट का चाबी किसी और एक प्रोफेसर को दे दिया, जाओ ऐश करो। अरे फ्रेंड्स, कभी अपने बिल्डिंग में, सोसाइटी में, चौल में किसी के घर रिनोवेशन का काम चल रहा है ना, रिनोवेशन, अगर उन्होंने पुराना टाइल्स निकाला है, पुराना लादी निकाल दिया है और नया बिठा रहे हैं, है कि नहीं? अगर उन्होंने बाहर उसका ढगला करके रखा हो और बाजू वाले आंटी जाके बोलेंगे ना कि एक्सक्यूज़ मी, अगर आपको इसका ज़रूरत ना हो तो मेरे बाथरूम में ये 2 लादी में लगा दो प्लीज़, वहाँ पे लीकेज हो रहा है प्लीज़, तो 2 लादी भी नहीं छोड़ेगा कोई। नहीं हमको काम का है, इसलिए तो रखा है, वरना फेंक नहीं दिया होता। अगर काम का नहीं तो पक्का दे देते, पर हमको काम का है। उसको कोई काम का नहीं है, वो बेच के उसको 700 रुपया मिलने वाला है, इतना ढगला बेच के रेबिट का, पर उसके लिए नहीं हमको बहुत काम का है। एक लादी तक कोई छोड़ने को तैयार नहीं होता। लेकिन अपना इकोनॉमिक्स बोल रहा है कि लॉ ऑफ डीएमयू ये समझा रहा है कि द एक्सेस वेल्थ शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिच टू द पुअर। आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है तो आप बांटो। आप बोलेंगे सर ये हमको बात समझ में आ गई, पर क्या ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है? The answer is yes. Let me give you 2 different examples. Dear friends, अगर आप मेरी बात को समझ पाओ तो बाबा रामदेव का पतंजलि का जो आश्रम है, जहाँ पे हरिद्वार में बहुत सारी चीज़ें बनती है, पतंजलि प्रोडक्ट्स, वहाँ पे शुरुआत में उनके पास कुछ नहीं था। किसी एक पैसे वाले बंदे ने शुरुआत में 1100 मीटर का, स्क्वायर मीटर का जगह इनको डोनेट कर दिया फ्री में। क्या आप कुछ यहाँ पे अच्छा शुरू करो, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है तो ये
इसके लिए इस्तेमाल करो, मुझे उसका कोई पैसा नहीं चाहिए। आप बोलेंगे सर ये हरिद्वार में पॉसिबल है, क्या मुंबई जैसे में पॉसिबल है? फ्रेंड्स, लेट मी शेयर वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विथ यू। अगर आप कभी कांदिवली ईस्ट हाईवे पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगर आपने कभी देखा हो कंपनी, उसके बाजू में राइट पे एक गली अंदर जाती है, ठाकुर विलेज का एरिया, ठाकुर कॉलेज से आगे, ठाकुर मॉल से आगे, वेरी पॉश एरिया, वेरी पॉश एरिया। ओके फ्रेंड्स, चारों बाजू बड़े बड़े टावर है, सर्कल में पूरा एक रोड है और बीच पे एक बहुत बड़ा गार्डन है, एवरशाइन ड्रीम पार्क। निर्मला कॉलेज, ठाकुर कॉलेज के ज़्यादातर स्टूडेंट्स का टाइम वहीं पर स्पेंड होता है। वो लोग लेक्चर में कम दिखाई देते, उस गार्डन में ज़्यादा दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, आज से करीब 18-20 साल पुरानी अगर मैं बात करूँ, व्हेन आई वेंट देयर फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि सर बहुत मस्त जगह है, आपको बहुत पसंद आएगी। अब तो बहुत कुछ खत्म हो चुका है, फिर मैं उस वक्त की अगर बात करूँ, वेरी नाइस प्लेस। जब मैं एंट्री ले रहा था, 5 रुपये एंट्री फी टिकट था, बट आई वॉज शॉक, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा पाटिया मारा था जहाँ पे लिखा था बृहद मुंबई महानगर पालिका, मतलब ये बीएमसी का गार्डन है। अब अगर ये बीएमसी गार्डन है तो उसका एंट्री फ्री में होना चाहिए, पर उन्होंने मेरे से 5 रुपया लिया। मेरे को समझ में तो नहीं आया कि जब ये बीएमसी का है तो 5 रुपये एंट्री फी क्यों है। बट व्हेन आई एंटर्ड इन दैट गार्डन, काफ़ी स्पेसियस जगह, एंट्री मारते ही दिल खुश हो जाए। दो तो गार्डन के लिए स्पेस, एम्यूजमेंट पार्क छोटे बच्चों के लिए, हर तरह की उम्र के लिए अलग अलग तरह के झूले लगाए थे, झूले झूले लाल काले पीले। अंदर एक साईं बाबा का मंदिर है, गार्डन के अंदर मंदिर है। अगर आप बूढ़ा लोगों को साथ में लेकर गए हो, ओल्ड एज पीपल को, तो वो लोग भी पक नहीं जाएंगे। साईं बाबा के मंदिर के पास उनकी एज के हिसाब से बड़े बड़े झूले लगाए गए हैं, उनकी एज के हिसाब से। आप उनको वहाँ पर बिठा दो और आप अपने अपने हिसाब से अपना कोना ढूंढ लो, तो इवन यू कैन एंजॉय इट। और इतने सारे कोने अवेलेबल है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ओके फ्रेंड्स, उस वक्त उस गार्डन के अंदर 2 रेस्टोरेंट थी, ओपन रेस्टोरेंट। ये बात अलग है कि पब्लिक को समझ में आता नहीं है और वहीं पर खा के वहीं पे कचरा कूड़ा करते थे। सो बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम अल्टीमेटली वो दोनों रेस्टोरेंट बंद करनी पड़ी, वरना लोकेशन वाइज वो दोनों रेस्टोरेंट गार्डन के अंदर ओपन रेस्टोरेंट थी एंड वो सुपर। वहाँ पे स्केटिंग के लिए अलग से जगह रखा गया है। शाम को 5 बजे के बाद पूरे गार्डन में स्लो म्यूजिक बजता है, इंस्ट्रूमेंटल सीडी बजती रहती है, रोमांटिक मूड क्रिएट करने के लिए। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे नमाज के वक्त लोग नमाज पढ़ पाए। सुबह शाम को बाबा रामदेव के आशीर्वाद वहाँ पे योगा कराते रहते हैं। चलने के लिए अलग से जगह है, छोटे बच्चों का टॉय ट्रेन घूमते रहता है। उस वक्त वहाँ पे 20 रुपये टिकट में एक ट्रेन चलती रहती थी जो पूरे गार्डन को घुमाती थी, बड़े लोगों के लिए भी। बट आफ्टर सम टाइम उसका एक डिब्बा पलटी खा गया और एक बच्चे की जान चली गई, तो अल्टीमेटली उसको बंद करना पड़ा। वो एक्चुअली कोई ट्रेन तो थी ही नहीं, एक ट्रैक्टर के पीछे कुछ डिब्बे लगा के रोड पे वो घूमती रहती थी, बट जस्ट लाइक ट्रेन, पूरे गार्डन को घुमाने के लिए। अगर आप पूरा गार्डन चल के समझ के घूमना चाहते हो तो यू रिक्वायर मिनिमम हाफ एन आवर। इतना बड़ा जगह, इतने सारे कोने अवेलेबल। वहाँ पे एक ग्रासलैंड है स्लैंट में, जहाँ पे कपल लोग हाथ में हाथ डाल के सोए रहते हैं, चांद सितारे तोड़ने की बातें करते हैं, अगर नीचे से लाल चींटी नहीं काटेगी तो। ओके, शाम को 7 बजे के बाद उस गार्डन में कलरिंग फाउंटेन स्टार्ट होते हैं। कुछ स्टेप्स चढ़ना था और दोनों में जो कलरिंग फाउंटेन्स। ओके, कुछ स्टेप्स चढ़ने के बाद एक हाइट पे एक स्पॉट आता था जहाँ से पूरे गार्डन का लाइटिंग में शाम को आपको व्यू दिखता है। इट लुक सुपर। ठीक उस स्पॉट के पीछे लाइटिंग में पानी ऐसे गिरता था कि आपको लगे कि पानी का बलून है। फिर ये सब मैं वहाँ पे जाके जो फील कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक उसके पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लाइटिंग के साथ लिखा हुआ था एवरशाइन ड्रीम पार्क। आई शॉक अगेन, क्योंकि बाहर एक बोर्ड मारा था
बृहद मुंबई महानगर पालिका, और अंदर में आप देख रहा हूँ एवरशाइन ड्रीम पार्क। फ्रेंड्स, एवरशाइन मुंबई में एक प्राइवेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है। आई डोंट नो कि आपने कभी सुना है कि नहीं। एवरशाइन नगर मलाड वेस्ट में, वसई में एवरशाइन सिटी, ये सब एवरशाइन ग्रुप वाले का है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी एरिया में आगे एक एवरशाइन क्लब भी है। ओके, एक जिम खाना भी है, एवरशाइन क्लब भी है। जब मैंने पहली बार ये देखा तो मुझे कंफ्यूजन हुआ कि ये गार्डन बीएमसी का है कि एवरशाइन वाले का है। बाहर पार्टियाँ हमारा है बीएमसी, अंदर नाम लिखा है एवरशाइन ड्रीम पार्क। थोड़ा डिटेल स्टडी किया तो एक नई बात सामने आई। सच में वो जगह एवरशाइन वाले का खुद का था फ्रेंड्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। ओके, वो पूरा गार्डन उसने खुद ने उस तरीके से बनाया, और मुंबई में ऐसा गार्डन उस जमाने में पहला गार्डन था तो इतनी सारी चीज़ों को लेकर बनाया गया, सोच के साथ, प्लानिंग के साथ। इतना पॉश एरिया में इतना बड़ा जगह का गार्डन बनाकर उसने बीएमसी को डोनेट कर दिया। उसके पास जगह की कोई कमी नहीं है, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है, पर तो भी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोई बिल्डर, कोई बिजनेसमैन इतना बड़ा जगह डोनेट कर दे फोकट में। बात हजम ही नहीं हुई। थोड़ा जब और स्टडी किया तो कुछ और बातें सामने आ गई। उस गार्डन के चारों बाजू बड़े बड़े टावर है। कानाकिया बिल्डर्स के साथ एवरशाइन वाले का उसमें पार्टनरशिप था, और वो सभी टावर्स में 1 BHK फ्लैट उस जमाने में 6 लाख रुपए में वो लोग बेचने वाले थे। पर कांदीवली स्टेशन से ये 15 बस स्टॉप की दूरी पे आता है, तो कोई पब्लिक वहाँ पे जाकर रहने को तैयार नहीं होती थी। बोले इतना दूर जंगल में मंगल करने कौन जाएगा, तो कोई फ्लैट वो बेच नहीं पा रहे थे। इन्होंने क्या आइडिया लगाया, गार्डन बनाकर पब्लिक को अट्रैक्ट किया। जब फैमिली के साथ लोग आएंगे, बच्चा गार्डन देखेगा, पेरेंट्स लोकेशन देखेंगे, और जब सोचेंगे वाओ, और हर टावर में कुछ फ्लैट ऐसे जहाँ से विंडो से आपको ये गार्डन दिखाई दे, तो गार्डन बीच में है, तो फाइनली लोग उस जगह के लिए अट्रैक्ट होने लगे। विदिन 1 ईयर जो फ्लैट उसके 6 लाख में नहीं बेच पा रहा था, वो 18 लाख में सभी फ्लैट बुक हो गए, 18 लाख में। और फ्रेंड्स, आज वहाँ पे एक एक फ्लैट की कीमत करीब करीब 1-1 करोड़ रुपया हो चुकी है। उस वक्त 6 लाख में लेने को कोई तैयार नहीं था, आज 1 करोड़ में कोई बेचने को तैयार नहीं है। दूसरा एक फायदा ये हुआ कि बीएमसी के साथ एवरशाइन के रिश्ते इतने अच्छे हो गए कि अब जब एवरशाइन की फाइल वहाँ जाएगी तो बीएमसी ऑफिसर पढ़ेगा भी नहीं खोल के, सीधा एवरशाइन, चला पूरे नेक्स्ट स्टेप मार दिया, खत्म। तीसरी बात, छोटे से छोटे बच्चे के दिमाग में उसने एवरशाइन नाम डाल दिया, गुडविल, फोकट का एडवर्टीजमेंट, मतलब लाइफ टाइम के लिए पब्लिक के दिमाग में एवरशाइन नाम घुस गया, एवरशाइन ड्रीम पार्क। इट्स अ ग्रेट एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी। एक बार का खर्चा और पब्लिसिटी के हिसाब से, एडवर्टीजमेंट के हिसाब से, इट इज सुपर स्ट्रेटेजी। बच्चा छोटी सी उम्र में सोच लेगा मैं बड़ा होकर एवरशाइन के वहाँ पे घर लूँगा। तो ये जो सोच है, पर ये वो क्यों कर पाया, क्योंकि उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, काफ़ी प्रॉपर्टीज, और वो भी मुंबई जैसे एरिया में, तो उसको एकाध प्लॉट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो लॉ ऑफ डीएमयू के हिसाब से उसके पास बहुत प्रॉपर्टी अवेलेबल होने की वजह से उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो चलो एक प्लॉट डोनेट कर दिया गार्डन बनाकर। तो दैट वाज आवर सेकंड पॉइंट, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी एंड सोशल जस्टिस। आवर थर्ड पॉइंट इज helpful to businessmen. Friends, law of DMU is very helpful to businessmen to increase the sales. If any businessman wants to increase his sale for particular product, तो उसे ये समझ में आ जाना चाहिए कि पब्लिक का इंटरेस्ट इस प्रोडक्ट में क्या है। If people have greater MU in one particular commodity, so you can easily increase the sale of that product, of that commodity. Let me give you another practical example for this purpose. VIP suitcase, सबने नाम सुना होगा VIP suitcase. Friends, बहुत सालों पहले
वीआईपी सूटकेस की जो कंपनी थी, ओके, उसने एड बनाई थी कि जहाँ पे एक बंदे को गांव जाना होता है, उसको बस की टिकट मिलती नहीं है, तो बस के पीछे वीआईपी सूटकेस लगाता है, रस्सी से पूरा सामान पैक करता है और उसके ऊपर खुद ही बैठ जाता है और गांव तक पहुंच जाता है। मतलब वो ये दिखा रहे हैं, देखो हमारे वीआईपी सूटकेस कितने स्ट्रेंथ वाले हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है, कि वो कितना भी वजन सहन करे और उसके व्हील कितने स्ट्रॉन्ग है कि वो गाँव तक चले गए बस के पीछे पीछे। ये उनका तरीका था मार्केटिंग का कि पब्लिक अब खरीदेगी। प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, 2000 रुपये का सूटकेस था, बड़ी अच्छी चीज़ थी, लेकिन प्रोडक्ट फेल हो गया, पब्लिक में उसकी डिमांड नहीं बढ़ी। बाद में उन्होंने उल्टा सोचा कि शायद हेवी लगेज की वजह से पब्लिक खरीद नहीं रही होगी, तो कुछ सालों के बाद उन्होंने एड चेंज कर दी। ये एड शायद आप में से भी कुछ लोगों ने देखी होगी, टीवी पे एड आती थी 2-3 साल पहले कि एयरपोर्ट पे अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि एक बहुत खूबसूरत एयर होस्टेस की बाजू की जगह खाली है, तो जिनके पास हल्का फुल्का लगेज है वो जल्दी पहुंच जाए। तो सब लोग वीआईपी सूटकेस लेके दौड़ना शुरू एयरपोर्ट पे। मतलब पहले उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाया, फिर बोले हल्का फुल्का लगेज है, उनको लगा अब डिमांड बढ़ेगा, लेकिन उस वक्त भी डिमांड नहीं बढ़ी, प्रोडक्ट फेल हो गया और कंपनी बहुत लॉस में चल रही थी वीआईपी। फ्रेंड्स, वीआईपी के कंपनी के शेयर से मार्केट में, पर उस वक्त काफ़ी लॉस। अब रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि 15-20 दिन अगर आपको गांव जाना है तो सूटकेस काफ़ी अच्छा बनाया है, लेकिन 2000 रुपया गरीब आदमी को नहीं परवड़ेगा। जिसको 15-20 दिन गांव जाना हो उसको 2000 का सूटकेस नहीं परवड़ेगा, वो पोटला बांध के यूं ही निकल जाएगा। और जिनको ये परवड़ता था वो बड़ी बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव होते थे जिनको ये परवड़ेगा, लेकिन उनको कभी 15-20 दिन का छुट्टी मिले ये पॉसिबल नहीं था। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वीआईपी सूटकेस का डिमांड मार्केट में नहीं बढ़ा। उस कंपनी के एमडी को एक बात समझ में आ गई कि लोगों का इंटरेस्ट वीआईपी सूटकेस में नहीं है। तो बिफोर सम 2-3 इयर्स व्हाट दे डिड, उन्होंने बिग बाजार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आपने भी कभी ऐड देखा होगा, सबसे सस्ता बुधवार, सबसे सस्ता वेडनेसडे, बिग बाजार, ऐसा ऐड आता था। इन्होंने क्या किया, बिग बाजार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि अगर बुधवार के दिन अगर आपके वहाँ से कोई वीआईपी सूटकेस खरीदे 2000 रुपये का, तो उनको वीआईपी ब्रीफकेस आता है ऑफिस यूज़ के लिए। ब्रीफकेस, छोटा सा ब्रीफकेस जैसा होता है, आपका छोटा सा टैबलेट अंदर रह जाएगा, डायरी रह जाएगी, छोटा सा लंच बॉक्स रह जाएगा, डायरी, पेन, वो सब, ऐसा छोटा सा ब्रीफकेस। तो 400 रुपये की चीज़ थी, तो इन्होंने ऐसा स्कीम रखा कि अगर आप बिग बाजार से बुधवार को 2000 का सूटकेस खरीदोगे वीआईपी, तो 400 का ब्रीफकेस फ्री। अब इसमें क्या होता था कि जो बड़ी बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अपनी डार्लिंग के साथ, स्वीटार्ट के साथ, वाइफ के साथ, फियांसी के साथ शॉपिंग के लिए बिग बाजार जाए, हफ्ते भर का सामान ले ले, तो ट्रे लेके चलते रहेंगे, ये ले लिया, ये ले लिया, बिस्कुट ले लिया, ब्रेड ले लिया, सॉस ले लिया, ये राइट। और अचानक से चलते हुए टक रहा है, ब्रीफकेस, ओ वीआईपी, वाओ, अरे एक्सक्यूज मी, व्हाट्स द प्राइस? सर इट इज फ्री। फ्री हाउ? जो पैसे वाले लोग होते हैं ना वो चिबावले होते हैं फ्रेंड्स, पता नहीं कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पूछ रहा है हाँ, तो उस बंदे ने फ्री कैसे है ब्रीफकेस, उसने क्या किया, अंदर से 2000 का सूटकेस निकाल के दिखाया, विद द सूटकेस ऑफ दिस 2000 रुपीज, 400 का ब्रीफकेस फ्री। अब देखो इसके दिमाग में क्या हुआ, और स्वीटार्ट प्लीज कम हियर, नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू महाबलेश्वर ना फॉर 2 days, तो मे बी ऑफ दिस सूटकेस। वो स्वीटार्ट को क्या पूछ रहा है, 2 दिन के लिए महाबलेश्वर जाना है तो हम ये सूटकेस खरीद ले। 2 जन को 2 दिन के लिए महाबलेश्वर जाना है। फ्रेंड्स, ये सूटकेस 4 लोगों को 10 दिन का कपड़ा समझ आए उतना बड़ा, ओके। और ये 2 लोगों को 2 दिन महाबलेश्वर जाना है तो वो 2 दिन का सूटकेस खरीद रहे हैं। वो डार्लिंग क्या बोलेगी, इतना बड़ा, लेकिन मुझे थोड़ी उठाना है, तेरे को तो पुली बना के उठना है, ले जा। एक्चुअली दोनों में से किसी का भी इंटरेस्ट सूटकेस में नहीं है फ्रेंड्स, दोनों का इंटरेस्ट वो 400 का जो ब्रीफकेस फोकट में मिल रहा है उसमें। बिलीव मी, 3 साल में जितने वीआईपी सूटकेस नहीं बेच पाए थे ये कंपनी वाले, उन्होंने 6 महीने में बेच दिए फ्रेंड्स, विद इन 6 months। तो फाइनली कंपनी को समझ में आ गया कि लोगों का जो एमयू है उसको फ्री कर दो। सो बिकॉज ऑफ दैट फ्री ब्रीफकेस पीपल वर रेडी टू बाय suitcases of 2000 rupees. So because of low of DMU, VIP company could increase the sale of that suitcase. So that was our third point, helpful to businessmen.
Our fourth point and last point is consumption. Law of DMU explain the consumers where to stop the consumption. फ्रेंड्स, आप और मैं अगर कभी शॉपिंग के लिए जाए तो हम अपना कंजम्पशन रोकते कहाँ पर है? बोले वहाँ पर जहाँ पे अब उस चीज़ के कंज्यूम करने में, खरीदने में अपना इंटरेस्ट खत्म हो गया हो। और ये लॉ ऑफ डीएमयू बहुत आसानी से समझाता है। अगर आप लोग कभी जू बीच जाते हो ना घूमने के लिए, जू बीच, देखो जू बीच आप कुछ भी ना करो ना तो भी टाइम पास हो जाता है, तो भी टाइम पास हो जाता है। कपल बैठे होते हैं, वो फेरी वाले कुछ ना कुछ लेके निकलते रहेंगे, बोलो समोसा गरम, बोलो समोसा गरम। एक इंटरेस्टिंग बनाएगा चना चोर गरम वाला, कपल बैठा उसके पीछे खड़ा रहेगा, बोलो चोर गरम, बोलो चोर गरम, है ना। उसमें आप एंट्री मारोगे ना तो एक पॉपकॉर्न वाला रहेगा, साहब 2 का 1 5 का 3 पॉपकॉर्न लीजिए, 2 का 1 5 का 3, 2 का 1 5 का 3 छोटा सा पैकेट होगा, 2 रुपये का 1 पैकेट। अब अगर 2 रुपये का 1 पैकेट है तो 3 के 6 रुपये होने चाहिए, बोलेगा 5 का 3, 1 रुपया कम। क्यों? उस बहाने आप 3 पैकेट खरीदो, करेक्ट। अब सपोज हम लोग कोई बड़े ग्रुप में गए हैं, अगर हम बड़े ग्रुप में गए तो 20-25 लोग को लेकर गया हूँ घर में, राइट। अब वो मुझे बोल रहा है साहब 2 का 1 5 का 3, तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि हम लोग तो बहुत सारे हैं, तू 5 का 3 देने को तैयार है, मैंने तू 10 रुपये का 6 तो दे ही देगा, मुझे 1 पैकेट और 10 रुपये का 7 तो वो दे देगा। मैं बोलता हूँ हम लोग तो बहुत सारे हैं। ऐसे भी क्या होता है, पॉपकॉर्न खाने के लिए थोड़ी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टाइम पास, खाते हुए कपल कहीं बैठा तो ओके टाइम पास। तो मैं उसको बोला 10 का 7 दे दे, बोलता है सब ले लो। मैं बोलता रुक, हम लोग तो बहुत सारे हैं, अगर तू 10 रुपये का 7 पैकेट दे रहा है, मतलब तू 20 रुपये का 14 तो दे ही देगा, तो 20 रुपये का एक और दे दे 15, वो दे देगा। मैं बोलता रुक, हम लोग तो बहुत सारे हैं। जब तू 20 रुपये का 15 पैकेट देने को तैयार है, इट मीन्स के तू 40 रुपये में 30 पैकेट तो दे ही देगा, एक पैकेट और दे दे 31 पैकेट। सोचिए फ्रेंड्स, 2 रुपये का एक था और मैं 40 रुपये में उसके पास 31 पैकेट्स मांग रहा हूँ, वो देने को तैयार हो जाएगा, आराम से तैयार हो जाएगा। लेकिन ये कब की बात है कि जब मैं एक बड़े ग्रुप को लेकर एंजॉय करने, टाइम पास करने, फालतूगिरी करने गया हूँ, यूं ही एम ही, राइट। तो 40 रुपये का 31 पैकेट लिया उस दिन और फुल टू एंजॉय करूँगा। सपोज 8 दिन बाद मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर मैं जू बीच गया, जैसे मैंने एंट्री मारी पॉपकॉर्न वाला, अरे साहब आप सब 2 का 1 5 का 3, अरे साहब आपका पैसा बहुत शगुन वाला है, बोरी साहब 5 का 4 ले लीजिए। मैं उसको बोलूँ देख भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये ले 5 रुपया और 1 पैकेट दे दे। बोले साहब 5 का 3 आ रहा है, अरे तू 1 पैकेट देना भाई। अरे साहब ऐसा क्या करते हो, आपने लास्ट टाइम 40 रुपये का 31 पैकेट लिया। ए भाई वो मैं नहीं था, गर्लफ्रेंड के सामने ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना। अरे साहब क्या बात करते हो, अरे भाई तू 5 का 1 दे, बहुत हो गया, मैंने लिया 5 लिया, मुझे एक भी पैकेट नहीं चाहिए। अरे साहब इतना उखड़े क्यों? अभी उसको क्या समझाऊँ उखड़ा क्यों? लास्ट संडे में 15-20 लोगों को लेकर आया था, धमाल मस्ती करने आया था, तो मेरा जो इंटरेस्ट था एमयू था वो पॉपकॉर्न में था। अभी उसको मैं क्या बोलूँ कि आज मेरा जो एमयू है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेरी गर्लफ्रेंड में है, तेरे पॉपकॉर्न में नहीं है। वो पीछे चिपक गया, अरे साहब ले लो ना साहब, 10 पैकेट ले लो ना, सस्ते में देता हूँ। अभी उसको क्या बोलूँ, 10 पैकेट लेके करूँ क्या, सिर्फ पॉपकॉर्न खाते रहूँ? बोलते हैं साहब बचे तो घर पे लेके जाना। अरे घर पे लेके जाना, सोसाइटी में सबको प्रसाद बांटू, ये लो जू बीच का प्रसाद खाओ। अरे मेरा एमयू आज मेरी गर्लफ्रेंड में है, पॉपकॉर्न में नहीं है, तो मैं वहाँ पे पॉपकॉर्न का जो कंजम्पशन है, शॉपिंग है, उसको रोक दूंगा। तो ऐसा नहीं कि पैसे खत्म हो जाएगा और हम कंजम्पशन रोकते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू एक्सप्लेन्स वेयर टू स्टॉप कंजम्पशन। बोले जहाँ पे अपना एमयू खत्म हो जाए वहाँ पे हम उस चीज़ का कंजम्पशन रोक देते हैं। तो दैट वाज आवर 4th पॉइंट। सो फाइनली टुडे वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ practical importance of law of DMU. That's enough for this topic. Friends, soon I'll approach you. Thank you so much.